Welcome all the aspirants of TGT English in Haryana. Your paper was conducted by HSCC on 14th May 2023. HSCC has not released its official answer key. Today I am going to discuss answer key of your English part, okay, part B. I have code C with me. Firstly, I want to tell you about the distribution of mass, okay. Your paper level was a bit hard, okay. I will say it is a hard paper, so merit will be a bit low, okay. According to me, the people scoring 70% marks in this paper are likely to be selected in different categories, okay. Because paper level is difficult, I will tell you there are some ambiguities also. कुछ क्वेश्चंस के अंदर एम्बिग्विटी भी है जहां आपको ग्रेस मार्क्स के लिए आपको लिखना चाहिए HSC को, ओके. तो फर्स्टली आई वांट टू टेल यू अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस, okay. There were questions on spelling, 3 questions on spelling, finding errors 3 questions, ordering of sentences 3 question, literature 3 question, part of speech 4 question, functional grammar 3 questions, vocabulary 10 question, figure of speech 2 question, unseen passage 2 question, writing skill 1 question, 1 word substitute 2 question, miscellaneous questions were there about 10 to 14 miscellaneous question, and one type of question I have left, ordering of words, okay. Ordering of not words, ordering of alphabets, okay. There were 2-3 question on ordering of alphabets, okay. You can add in it, okay. If I remind you the paper which was conducted in the year 2015, okay, this paper is almost based on the same pattern, okay. If you will notice down, font जैसा font यूज़ हुआ है वैसा ही font इस पेपर में यूज़ हुआ है, सेम font है, ओके. जो 15 में पेपर हुआ था लगभग पेपर वैसा ही है, ओके. लिटरेचर के ऊपर आई वॉज होपिंग दैट देर विल बी ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस, बट ऑन लिटरेचर देर आर ओनली 3 क्वेश्चंस. all the 3 questions are difficult, okay. Moreover, vocabulary part is also difficult, so I can conclude your merit will be a bit low. आपकी merit है वो 80 तक नहीं जाएगी, okay. The people who are scoring around 70 to 75 marks, they are in the safe zone, okay. I feel that the people who are scoring around 65, they are also likely to be selected, okay. Now without wasting time, let's discuss the questions, okay, one by one. Question number 51 and 53, okay. Question number 51 to 53. In each sentence below there are 2 blank spaces. Below each sentence some pair of words are given which are numbered A, B, C, D and E. Pick out the most appropriate pair to fill in the blank in the same order to make the sentence meaningfully complete. तो क्या है फर्स्ट 51, many of us who dash rational emotive therapy are dash tense, angry or depressed. तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. इफ़ यू आर लिविंग द सेंटेंस यू कैन यूज़ ई. तो आपको पेयर ऑफ वर्ड्स भरना है, कौन सा सही आएगा. तो इसके अंदर जो फर्स्ट दिया हुआ है सीक एंड ऑफन, बी इज़ फॉलो एंड स्केर्सली, सी इज़ परफॉर्म एंड यूजली, डी इज़ प्रैक्टिस एंड फ्रीक्वेंटली. तो मैनी ऑफ अस हु प्रैक्टिस रैशनल इमोटिव थेरेपी आर फ्रीक्वेंटली टेंस, एंग्री और डिप्रेस्ड, ओके. तो डी ऑप्शन है वो इसके अंदर करेक्ट जाएगा. जो लोग रैशनल इमोटिव थेरेपी को प्रैक्टिस करते हैं वो बहुत बार गुस्से में रहते हैं या वो निराश रहते हैं,
तो इन 51 डी इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 52. 52 के अंदर एम्बिग्विटी है. आपको HPSC से ग्रेस मार्क्स के लिए कहना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चंस आंसर हैं वो एक से ज़्यादा हैं, वो करेक्ट बन रहे हैं. ठीक है, ये एग्जामिनर पर डिपेंड करेगा कि वो कौन सा आंसर है वो सही ले रहा है. 52, ध्यान से सुनिए इसको. एजुकेशन इज डैश टू द इकोनॉमिक एंड सोशल फैब्रिक ऑफ द नेशन बट डैश दैट फ्यू पॉलिटिकल पार्टी हैव मेड इट इलेक्शन इशू. तो इसके अंदर जो ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है वो बी भी हो सकता है. बी इज़ आल्सो करेक्ट एंड D is also correct. Okay, D is also correct according to me. Equal weightage I will give you, but it will depend on finally on the examiner. Okay, क्या है कि education is concomitant to the economic and social fabric of the nation, but instead of that few political party have made it election issue. Okay, या फिर education is rudimentary to the economic and social fabric of the nation, but beside that few political parties have made it election issue. Okay, election issue. अब जो concomitant होता है happening at the same time होता है. rudimentary जो होता है वो dealing with basic ideas होता है. तो दोनों ही जो वर्ड्स हैं वो करेक्ट आ रहे हैं. आपको यहाँ से ग्रेस मार्क्स है, वो ऑब्जेक्शन है वो रेज भी करना चाहिए अगर वो आपका आंसर है वो दोनों को कंसीडर नहीं कर रहा तो. अब क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं. डिजार्मेंट एंड डेवलपमेंट इन आवर टाइम आर इंटररिलेटेड बट डेवलपमेंट विल डिपेंड ऑन ए चेंज इन वर्ड्स पॉलिटिकल थिंकिंग. ओके, अब ये क्वेश्चन है, इसके अंदर भी मेरे अकॉर्डिंग है वो एम्बिग्विटी है. ओके, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो भी करेक्ट आएगा और जो ऑप्शन नंबर बी है वो भी करेक्ट आएगा. ओके, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट. डिजार्मेंट होता है जस्ट गिविंग अप न्यूक्लियर वेपन. ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ना. ओके, डिजार्मेंट एंड डेवलपमेंट इन आवर टाइम आर इनविटेबली का होता है श्योरली इंटररिलेटेड. ठीक है, डेवलपमेंट विकास और न्यूक्लियर वेपन्स जिसको निशस्त्रीकरण कहते हैं वो इंटररिलेटेड हैं. बट डेवलपमेंट विल डिपेंड ऑन ए चेंज, बट सब्सटेंशियल डेवलपमेंट या फिर बिग डेवलपमेंट जिसको कहेंगे. ओके, सब्सटेंशियल का मीनिंग होता है कंसिडरेबल या लार्ज इन अमाउंट. ओके, कंटिन्यूस डेवलपमेंट जो होगी, ठीक है, विल डिपेंड ऑन ए चेंज इन दी वर्ड पॉलिटिकल थिंकिंग. तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आ रहा है. ऐसे ही डिजार्मेंट एंड डेवलपमेंट इन अवर टाइम आर क्लोजली इंटररिलेटेड बट रियल डेवलपमेंट विल डिपेंड ऑन ए चेंज इन दी वर्ड पॉलिटिकल थिंकिंग. ओके, तो ए एंड बोथ आर करेक्ट. ओके, एंड आई फील दैट मार्क्स विल बी गिवन टू बोथ दी आंसर्स हेयर. दोनों के ही आंसर है वो यहाँ मिलने चाहिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 55 एंड 54 and 55th. Okay, question is like this. In the following question there are blanks each of which has been numbered. These numbered are printed below the sentence and against each some words are suggested, one of which fits the blank appropriately. Find the appropriate words. Scientific psychology recognizes a simple truth that no two individuals are alike in this world. Even though equality is a fostered norm of civil society, the truth is that men okay, यहाँ R आएगा, are equal in. okay, are equal in और उसके 54 के अंदर R आएगा. R is correct here, there is no doubt about this. And 55, unequal in varying hues and degrees. Okay, D is the correct answer here. Now question number
56. ओके, स्पेलिंग्स के ऊपर क्वेश्चन था. ओके, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड. एक स्पेलिंग है वो रॉन्ग है, आपको उसको चूज करना है. तो क्या है, जो वर्ड्स दिए हुए हैं ये कंसाइन वर्ड है. कंसाइंस चेतना के लिए आता है. ओके, ये कमांडर. ओके, कमांडर एन ऑफिशियल इन नेवी, नेवी के अंदर ऑफिशियल होता है. सरकमफरेंस ये एक प्रकार से मैथमेटिकल टर्म है. और ये कॉन्कुरेंस. ओके, इसकी स्पेलिंग है वो रॉन्ग है. यहाँ पर इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी CONCURRENCE. ओके, here CON. ओके, and double R will come in 56. A is the right answer. Now question number 57. Sharbi, Sunsent, स्लॉटर, स्नीयर, अनअटेम्प्टेड. ई के लिए आप छोड़ सकते हो. अब यहाँ पर स्लॉटर वर्ड है, करेक्ट है. स्नीयर इज़ आल्सो करेक्ट. ओके, उसके बाद में शरबी ये भी करेक्ट है. यहाँ सनसेंसेंट. ओके, दिस वर्ड इज रॉन्ग हेयर. ओके, in 57 sunset. Okay, B is also correct here. Okay, B is also correct here. In 57 spelling of shrubby is I think wrong here. Okay, so A is the right answer. Okay, SHRUBB is there. Okay, shrubby area is shrubby means an area where shrubs are planted. Shrubby. Okay, so A is the correct answer here. Now 58. You have to tell the wrong spelling. Ostracism, obnoxious, obliterate, obligatory. Okay, E if you want to leave the answer here. Obligatory spelling is wrong here. Okay, obligate. Okay, here in 58 obliterate की स्पेलिंग रॉन्ग है. स्पेलिंग होगी आपकी OBLITERATE. ओके, ओब्लिटरेट, OBLITE. ओके, TE. Okay, E is missing here, so C is the right answer. Here spelling is wrong. Obliterate. Okay, meaning of obliterate is to destroy something completely. Now question number 59. In the 59 to 61 3 questions are there. Direct. In 52 to 63 directions are like this. In each of the following questions some sentences are given which are on the same theme. Decide which sentence is the most preferable with respect to grammar, meaning and usage. Okay, तो आपने ग्रामर की दृष्टि से या मीनिंग जहाँ बिल्कुल करेक्ट आ रहा है वो आपने सेंटेंस चूज़ करना है. क्या है, टीचिंग स्टाफ मस्ट टेक देयर लेक्चर रेगुलरली व्हेन आर आस्क्ड बाय द प्रिंसिपल. ओके, व्हेन आर आस्क्ड बाय द प्रिंसिपल. बी इज टीचिंग स्टाफ हैड टेकन द लेक्चर रेगुलरली had they known that the principal would come to know about it. C is the teaching staff would have taken lectures regularly had they known that the principal would know about it. And fourth is many irregularities are found in their lectures by the principal and he could not be disregarded them. Okay, in 59 okay, you have to tell which sentence is grammatically correct. Okay, according to me C will be the right answer. Teaching staff would have taken lectures regularly and had they known that the principal would know about
it. Okay, C is the correct answer here. Now let's take question number 59 to 61. In each of the following questions, find out which part of the sentence has an error. The error may be idiomatic or grammatical. If the sentence is correct, the answer is no error. Okay. 59. He knows very well what is expected from him, but he is not able to fulfill all the expectations. Okay, all the expectation. According to me, here error is there in 59 in the C part. Okay, C part. Okay, here all and the, okay, both are determiners. Two determiners cannot be used at the same place. Okay, यहाँ पर all expectations या the expectation आएगा. C part है वो wrong है. यहाँ पर आपका आंसर C होगा. Now question number 60. It is duty of every right thinking citizen to try to make the whole world a happier place to live in. Okay, in this part, C part is wrong here. Here, a happier. Okay, here comparative degree is used by the examiner. Okay, which is wrong here. Here, happy will come. To try to make the whole world a happy place to live. Okay, so C part is wrong here. It is the right answer. Now question number 61. The doctor referred the patient for the OPD without examining him. Okay, now the doctor referred the patient. Referred के साथ to preposition आना चाहिए. Okay, not referred for but referred to. Okay, here two preposition will come. This question is based on you can say part of speech. Part of speech का question था 61. B is the wrong. B is the correct answer. Now question number 62 and 3. Okay, let's take question number 62 and 3. In each of the following questions, some sentences are given below which are on the same theme. Decide which sentence is the most preferable with respect to grammar, meaning and usage, suitable for a formal writing in English. Okay, the teaching staff must take their lecture regularly when are asked by the principal. The teaching staff had taken the lecture regularly had they known that the principal would come to know about it. The teaching staff would have taken lecture regularly had they known that the principal would know about it. Many irregularities were found in their lectures by the principal and he could not be disregarded them. Okay, now disregarded by them. Okay, here some mistake is there. In question number 62, your answer will be in 62. C is okay. C is the correct answer here. You can C is the correct answer here. The teaching staff would have taken lecture regularly had they known that the principal would know about it. Now question number 63. By June next year, Ajay will be 20 years working in the office. Being 20 years completed, Ajay will be working in this office till June next year. Ajay working in the office for 20 years. By the next year, Ajay will have been working in the office for 20 years. Okay, now in question number 63. Okay, in question number 63, I think D is the right answer. Okay, D is the right answer. By June next year, Ajay will have been working in the office for 20 years. Now next
Question number 64 and 66. Okay, they are a similar type questions. In each of the following questions, there are 6 sentences marked S1, S2, P, Q, R, S. The positions of S1 and S2 are fixed. You are requested to choose one of the 4 alternative which would be the most logical sentences of the sentence इन दी पैसेज. तो आपको ऑर्डरिंग ऑफ जंबल सेंटेंसेस का ये क्वेश्चन है. ओके, तो आपको बताना है कि क्या होगा आपका राइट आंसर. ओके, मोस्ट ऑफ द पेरिशेबल फूड्स आर शिप्ड बाय रेफ्रिजरेटर शिप्स. ओके, जो फूड ख़राब हो जाता है उसके अंदर जो रेफ्रिजरेटर लगे होते हैं शिप्स, उसके अंदर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है. दे आर प्लेस इन द रेफ्रिजरेटर होल्ड ऑफ द शिप. उनको रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है. सम फूड सच एट बनानास आर शिप्ड बिफोर दे गेट राइप. और कुछ कच्चे फ्रूट्स को भी रखा जाता है जैसे कि बनानास है. एज द ग्रीन बनानास आर लोडेड ए मैन क्लोजली वॉचिज द साइन ऑफ येलो ऑन देम. और एक आदमी उनके पीले होने को बड़े ध्यान से देख रहा होता है. द कूल टेम्परेचर कीप द बनानास फ्रॉम गेटिंग राइप ड्यूरिंग द शिप. और जो ठंडा टेम्परेचर होता है उसके कारण केले हैं वो जल्दी पकते नहीं हैं. राइप बनानास आर पुअर ट्रेवलर. पके हुए जो बनानास होते हैं उनको हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ख़राब हो जाते हैं. एंड इवन वन राइप बनाना एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप कैन स्पॉइल ए होल शिप लोड ऑफ फ्रूट्स. ओके, तो इसके अंदर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शंस दिए हुए हैं पी क्यू आर एस, पी एस क्यू आर, क्यू पी एस आर, एस आर पी क्यू. ओके, तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग जो इसका करेक्ट आंसर जाएगा वो 1 ही जाएगा. क्या है कि मोस्ट ऑफ द पेरिशेबल फूड्स आर शिप्ड बाय रेफ्रिजरेटर शिप्स. ओके, उसके बाद में पी आएगा आपका दे आर प्लेस इन द रेफ्रिजरेटर होल्ड ऑफ द शिप. ओके, उसके बाद में क्यू आएगा आपका सम फूड सच एज बनानास आर शिप्ड बिफोर दे गेट राइप. उसके बाद में आर आएगा एज द ग्रीन बनानास आर लोडेड ए स्मॉल ए मैन क्लोजली वॉचिज द साइन ऑफ येलो ऑन देम. और उसके बाद में एस आएगा आपका द कूल टेम्परेचर कीप द बनानास फ्रॉम गेटिंग राइप ड्यूरिंग द ट्रिप. ओके, हियर ए इज द राइट आंसर. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 65. सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देयर. A transformation of consciousness is now beginning to express itself in the field of theoretical architecture. In the still theoretical structure, an attempt is being made to create a house that is a demonstration of an ecosystem. What is happening in the architect is a shift from international style of post-industrial era to a symbolic structure. Since architecture is the collective unconscious made visible, the architect does not himself always understand the full cultural implication of his own work. The new form is not a celebration of power over new materials, but a celebration of cooperation with the ecosystem. And S6 is given, the relationship between culture and nature is changed. For the architect grows a house like a garden. Okay, now you have to choose the correct answer. Okay, here in this whole question your B answer is the correct one. Okay, B आंसर है वो आपका correct आएगा. इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियसनेस इज नाउ बिगिनिंग टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फील्ड ऑफ थ्योरेटिकल आर्किटेक्ट. ओके, उसके बाद में आपका जो सेंटेंस का पार्ट आएगा व्हाट इज हैपनिंग इन द आर्किटेक्ट इज ए शिफ्ट फ्रॉम इंटरनेशनल स्टाइल ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा टू ए सिंबॉलिक स्ट्रक्चर. उसके बाद में इन द स्टिल थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर एन अटेम्प्ट इज स्टिल बीइंग मेड टू क्रिएट ए हाउस दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एन इको सिस्टम. ओके, उसके बाद में एस पार्ट आएगा आपका द न्यू फॉर्म इज नॉट ए सेलिब्रेशन ऑफ पावर ओवर न्यू मटेरियल बट ए सेलिब्रेशन ऑफ कोऑपरेशन विद द इको सिस्टम. और उसके बाद में आपका आर पार्ट आएगा
Since architect is the collective unconscious made visible, the architect does not himself always understand the full cultural implication of his work. और लास्ट के अंदर आपका जो S6 पार्ट आएगा, the relationship between culture and nature is changed, for the architect grows a house like a garden. ओके, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर हेयर. नाउ 66 के अंदर थोड़ा बोरिंग क्वेश्चन है ये. ओके, सीधा ही मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ. फोरकास्टिंग द वेदर हैज़ ऑलवेज बीन ए डिफ़िकल्ट बिजनेस. ओके, मौसम का अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल बिजनेस होता है. ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ ड्रॉट स्ट्रीम्स एंड रिवर्स ड्राई अप एंड cattle dried from thirst and crop are ruined. Many different things affect the weather and we have to study them carefully to make an accurate forecast. Ancient Egyptians had no need of this. Weather in the Nile Valley hardly ever changes. In early times, when there were no instruments such as thermometer or barometer, men looked for tell-tale sign in the sky. He made his forecast by watching flights of the birds or the way smoke rose from fire. Okay, here in this question, okay, in 66 B is the right answer. Okay, QPRS is the right answer. Okay, आप इसको कर लेना. अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ. क्या है 66 क्वेश्चन के अंदर? ओके, क्या है कि ओके, सम लेटर्स आर गिवन हेयर. कुछ लेटर्स दिए गए हैं. यू हैव टू फाइंड द करेक्ट वर्ड विच कैन बी मेड आउट ऑफ द अबव. आपको करेक्ट वर्ड है वो बताना है क्या जो बन सकता है. जैसे स्कूविरल, एनीमोन, फिनोमिनन, डेजल. ओके, तो इसके अंदर जो फिनोमिना वर्ड है, फिनोमिनन, ये वर्ड है वो इनके सभी अल्फ़ाबेट से बन सकता है. बाकी के अंदर कोई ना कोई जो लेटर है वो मिसिंग मिलेगा. सो हेयर इन दिस सी इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 68 to 69 की तरफ आते हैं. ओके, अभी एक क्वेश्चन और आने वाला है जिसके अंदर एम्बिग्विटी है, तो उसके ऊपर मैं लास्ट के अंदर आऊँगा, क्योंकि मेरे क्वेश्चन पेपर के अंदर वो लास्ट ही क्वेश्चन है. सेलेक्ट द कम्बिनेशन ऑफ number so that the letters words arranged accordingly will form a meaningful word. तो आपके लिए ये अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, इनको आपको मीनिंगफुल वर्ड में चेंज करना है. TLEMNA. ओके, तो इससे जो वर्ड बनेगा वो बनेगा मेंटल. ओके, मेंटल वर्ड है वो बन रहा है. मेरे को काफ़ी प्रयास करना पड़ा, लेंथी क्वेश्चन हो गया ये भी एक प्रकार से. मेंटल. ओके, सी इज़ द राइट आंसर. ऐसे ही IPELOC. ओके, तो ये जो वर्ड है इससे जो वर्ड बनेगा वो पुलिस बनेगा. बी है वो राइट आंसर आ रहा है. ओके, पुलिस. लेकिन ये इतनी जल्दी मुझे भी नहीं आ रहा था, काफ़ी मतलब लेंथी, काफ़ी देर सोचने के बाद ही पता चल रहा था. ओके, पेपर इज़ लेंथी. ओके, एंड अ बिट डिफ़िकल्ट आल्सो. डिफ़िकल्टी लेवल है इसके अंदर. अब देखो लिटरेचर के क्वेश्चंस हैं. क्या है? इन विच पोएम डज द फॉलोइंग लाइन बाय कीट्स अकर. कीट्स की एक पोएम है. क्या है? फॉर एवर विल्ट दाउ लव एंड शी बी फेयर. जो पीजीटी के स्टूडेंट है या जो असिस्टेंट प्रोफेसर या यूजीसी नेट को पढ़े हुए हैं वही लोग इसको कर सकते हैं. ओके, ये लाइन दी हुई है, तो ये फेमस लाइन, ओके, फेमस पोएम है. ओके, ओड टू ए नाइटिंगेल या हाइपर्सन या ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, ओड ऑन इंडोलेंस. तो ये ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न की लाइन है. सी है वो करेक्ट आंसर है. ओके, पोएम है वो फेमस है, लेकिन ये टीजीटी के लिए फेमस पोएम है वो नहीं कहूँगा, मैं कभी भी नहीं कहूँगा. पीजीटी के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर या यूजीसी के लिए ये इंपॉर्टेंट पोएम है जिसको मतलब वर्ड बाय वर्ड है वो स्टडी किया जाना चाहिए. हु रोट द हार्प ऑफ इंडिया. ओके, हार्प ऑफ इंडिया है. अब इसके अंदर मैं आपको गैस लगाने का बताता हूँ कि गैस कैसे लगाया जा सकता है. अब हार्प ऑफ इंडिया है. अब जो यहाँ पर जो राइटर्स दिए हैं उनमें से गोविंद चुंदर, माइकल मधुसूदन दत्त, हेनरी एल वी डेजियो, ओके, वी के गोकाक, ओके,
तो इसके अंदर हेनरी एल वी डेजियो ही फेमस है, तो आपको आंसर है वो यही लगाना चाहिए। ओके, ऐसे ही इस पोएम के अंदर जो क्वेश्चन था, ये लाइन थी ओड टू ए नाइटिंगेल, ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, ये पोएम्स हैं वो फेमस पोएम है, ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है। तो इनमें से ही लाइन होने की पॉसिबिलिटी बन रही थी। तो इस प्रकार से आपको गैस लगाना सीखना होगा। हु रोड द पोएम रेपोडी ऑन ए विंडी नाइट। ओके, तो ये जो पोएम है ये टी.एस. एलियट की पोएम है, ये भी कभी सिलेबस में नहीं रही है, इसको भी मैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के अंदर है वो लूँगा। स्पेंसर की फेरी क्वीन है, डब्ल्यू.बी. यीट्स की सेलिंग टू पेजेंटियम है, या फिर अमंग स्कूल चिल्ड्रन है। ये पोएम्स तो मतलब सिलेबस में लगाते रहे हैं, ठीक है। यूजीसी नेट के स्टूडेंट है, इनको प्रिपेयर करते हैं। अब हाउसमैन, अब देखो यीट्स की बहुत सारी पोएम हम पढ़ते हैं, टी.एस. एलियट का द वेस्टलैंड पढ़ते हैं, या उसके पोइटिक ड्रामास पढ़ते हैं, स्पेंसर के हम द फेरी क्वीन पढ़ते हैं, या उसकी दूसरी फेमस पोएम्स पढ़ते हैं। तो आंसर है, अगर मैं भी क्वेश्चन में अगर मैं एग्ज़ाम में बैठ रहा होता तो मैं हाउसमैन लगाता। हाउसमैन भी एक 20th सेंचुरी पोइट है, उसकी पोएम्स हमने पढ़ी नहीं है, मैंने नहीं पढ़ी हुई, तो हो सकता है कि उसकी पोएम हो, ये मैं यही निशान लगाता। लेकिन ये टी.एस. एलियट की पोएम है, जिसको नोबेल प्राइज़ 1948 के अंदर है वो मिला था। यस, 73 के ऊपर आ रहे हैं। डिड यू कम हेयर टू बाय एन अम्ब्रेला, ओके, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पर आपको हेयर बताना है, ये पार्ट ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है। पार्ट ऑफ स्पीच मैंने बड़े मतलब यूट्यूब चैनल पर डिटेल में करवाया हुआ है। हेयर वर्ड है वो क्या है कि क्वालिफाई करेगा वर्ब को, और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड होगा वो एडवर्ब होगा। ओके, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये, हेयर प्लेस की तरफ इंडिकेशन करता है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 74 क्या है? टिक द करेक्ट सेंटेंस, आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है। अब ये आर्टिकल का ही क्वेश्चन है एक प्रकार से मेरे अकॉर्डिंग। आई एम स्टडिंग सोशोलॉजी इन दी दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई एम स्टडिंग सोशोलॉजी एट दी दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई एम स्टडिंग सोशोलॉजी एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई एम स्टडिंग सोशोलॉजी विद इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब ये आंसर है वो आपका बिल्कुल रॉन्ग हो गया। ओके, हियर एट दी दिल्ली यूनिवर्सिटी कभी नहीं हो सकता। ओके, इन दी दिल्ली यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पर एड प्रपोजिशन है वो करेक्ट आएगा। सी इज़ दी करेक्ट आंसर हियर। ये भी पार्ट ऑफ स्पीच का ही क्वेश्चन था, आर्टिकल का क्वेश्चन हम नहीं कहेंगे इसको। क्या है 75 के अंदर? दिस इज़ द बुक, ओके, आई एम लुकिंग फॉर, ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें आई प्रोनाउन है, वॉज लुकिंग वर्ब है, वाउल दिस इज़ अमेजिंग। अब वाउल इंटरजेंक्शन बोल रहा है, अमेजिंग प्रोनाउन बोल रहा है, प्रोनाउन नहीं हो सकता ये अमेजिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। माई ब्रदर कम होम लेट, ओके, माई ब्रदर कम होम लेट, यहाँ ग्रामेटिकल एरर है, देखो, माई ब्रदर केम होम लेट ये कह सकते हैं, या कम्स होम लेट कहेंगे। अब इसके अंदर माई है वो नाउन है, माई नाउन नहीं हो सकता, वो प्रोनाउन होगा, ये रॉन्ग हो गया। होम नाउन करेक्ट है, लेट है वो एडजेक्टिव नहीं हो सकता, लेट एडजेक्टिव, लेट है वो एडजेक्टिव होगा। ओके, ये करेक्ट है। तो इसके अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है? ए पार्ट, सेकंड इज करेक्ट, ओके, ओनली सेकंड इज करेक्ट। तो यहाँ पर अमेजिंग है वो रॉन्ग हो गया। ओके, 3 इज करेक्ट, ओके, 3 इज करेक्ट। तो यहाँ पर भी माई है वो रॉन्ग दिया हुआ है, प्रोनाउन होना चाहिए। क्लियर? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, तो ये दोनों तो रॉन्ग हैं ही। फर्स्ट, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, डी इज द राइट आंसर। नाउ चेंज दी वॉइस, आपको वॉइस चेंज करना है, ये फंक्शनल ग्रामर के क्वेश्चन है। व्हेन डिड यू बाय दीज बुक्स, ओके, तो आपको इसको इंटेरोगेशन ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर व्हेन वर दीज बुक्स, ओके, व्हेन वर, ओके, व्हेन वर दीज बुक्स ब्रॉट बाय यू, ओके, ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ चेंज दी नरेशन, नरेशन और वॉइसेस के ऊपर मैं बहुत वीडियो बना चुका हूँ, ओके, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए। तो मेरा चैनल इजी इंग्लिश एनसीईआरटी लर्निंग विद चंद्रपाल के ऊपर आप देख सकते हो ये नरेशन और एक्टिवाइज पैसिवाइज की वीडियोस, अगर आपने नहीं देखी हैं तो। ही सैड आई मेट हिम यस्टरडे, ओके,
तो इसके अंदर जो आपका करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है वो, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। ओके, हैड मेट आना चाहिए। तो ही सेड दैट ही हैड मेट हिम द प्रीवियस डे, द डे बिफोर। ओके, द डे बिफोर, तो यहाँ पर 74 के अंदर ए ही करेक्ट आंसर है वो। 74 के अंदर ही सेड दैट ही 77, ओके 77 के अंदर है वो, जो करेक्ट आंसर आएगा वो ए ही आएगा। ओके, ए इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 78। वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, जल्दी से इसको ख़त्म करना चाह रहा हूँ। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेट ऑफ ए फॉर्मल लेटर। ओके, राइटिंग स्किल के ऊपर क्वेश्चन एक ही आया है, और जो फॉर्मल लेटर होता है उसके अंदर सबसे पहले हम सेंडर एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद डेट लिखते हैं, उसके बाद में रिसीवर एड्रेस। ओके, जिसके अंदर जैसे कोई भी ऑफिशियल नेम उसका, फिर एड्रेस लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बॉडी ऑफ द लेक्चर होता है लेटर, और फिर लास्ट में यूवर्स ओबीडेंटली और फेथफुली और सिंसियरली लिखते हैं, सब्सक्रिप्शन लिखते हैं। तो ए पार्ट है वो करेक्ट है यहाँ पर 78 के अंदर। 79 के ऊपर आते हैं। व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ द वर्ड ग्रीगेरियस? ग्रीगेरियस वर्ड है, उसका आपको एंटोनियम है वो बताना है। एंटी सोशल, ग्लोरियस, होरेंडियस, सिमिलर, या ई अगर आप इसको लीव करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका 79 क्वेश्चन होगा उसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए पार्ट। ओके, एंटी सोशल। एंटोनियम बताना है तो एंटी सोशल आएगा। अब व्हाट इज़ सिनोनिम ऑफ द वर्ड डेफर? ओके, डेफर वर्ड के लिए तो ए पार्ट है वो करेक्ट आएगा। इन डिफरेंट। पिक आउट द एंटोनियम ऑफ वेनिटी। वेनिटी एक प्रकार से ढोंग को बोलते हैं। ओके, एंटोनियम बताना है तो ह्यूमिलिटी इसका अपोजिट हो जाएगा। ओके, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है। पायस वर्ड है तो पायस लेडी। ओके, ये +1 के अंदर चैप्टर है आपका। द ऑथर खुशवंत सिंह, ग्रैंड मदर वॉज ए पायस लेडी। ओके, जिसने भी ध्यान से पढ़ा है उसका एक नंबर यहाँ बन गया। रिलीजियस वुमेन होता है, रिलीजियस। ओके, पायस मीन्स रिलीजियस। ओके, यहाँ रिलीजन इसका राइट आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 83 एंड 84, ये फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर है लेकिन वो भी डायरेक्ट नहीं पूछे हुए। ओके, क्या है? रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द 2 क्वेश्चंस दैट फॉलो। द ग्लोरीज ऑफ आवर ब्लड एंड स्टेट आर शेडोज नॉट सब्सटेंशियल थिंग्स। देर इज नो एम्योर अगेंस्ट फेट। डेथ लेज हिज icy hand on kings. Scepter and crown must tumble down and in the dust be equal made. तो ये डेथ के बारे में है पोएम, जेम्स शिरले की पोएम है। एंड द थीम इज दैट all people die. ओके, they are equal. ओके, इस प्रकार से ये बता रहा है कि सभी लोग एक जैसे होते हैं। ओके, all people are equal. ओके, in the end, ओके, our earthly titles are useless. ओके, तो क्या है? what is the figure of speech? ठीक है, in scepter and crown and scythe and spade. तो personification, irony, alliteration, monotony. तो यहाँ पर monotony वाला आंसर है वो सही है। ओके, यहाँ पर जो क्राउन है वो किंग के लिए आ रहा है। ओके, हम जैसे हम कहें द पेन इज माइटर देन सोवर्ड। ओके, पेन है यहाँ पर, द पेन वो राइटर के लिए आ रहा है कि जो लेखक होता है वो तलवार से ज़्यादा ताकतवर होता है। तो यहाँ पर मिनोटमी है। ऐसे ही फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर मैंने ये एग्जांपल भी रेडी किया हुआ है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। द वर्ड दैट मीन्स ए डेकोरेटेड रोड इज़, तो ये डेकोरेटेड रोड सेप्टर के लिए आता है। ओके, ए इज़ द राइट आंसर। ये एक प्रकार से क्या होता है सेप्टर? ए मतलब वैन टाइप होता है, शाफ्ट इन द हैंड ऑफ द रूलिंग मोनार्क। कोई भी राजा होता है उसके हाथ के अंदर एक प्रकार से ये वैंड होता है या छड़ होता है जिसके अंदर उसकी सारी ताकत है वो सत्ता होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 85 एंड 86।
क्या है, रीड दी फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर टू क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो ये एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, द फूड बिल इज स्टिल इन दी वर्क्स but has provoked a furious debate on the lack of grain shortage facilities, storage facilities, rotting of grains, and whether they should be distributed free to human masses. Waking up to the fact that no food security program can be effective without proper storage, the government is now planning existing warehouses facilities and also adding new ones. However, between food security and large scale storage there is a missing link that need to be taken note of, storage at the farm level. क्या है, a furious debate on the lack of grain storage facilities has been provoked by the food bill. ओके, यहाँ ए आंसर होगा फूड बिल। अब क्या है कि 86 है, the word in the passage that means एमिलोरेट जो वर्ड है एमिलोरेट, ओके, एमिलोरेट उसका जो क्या है मीनिंग आपको बताना है। तो इसका मीनिंग होता है बेटरमेंट। तो यहाँ पर डी आंसर है वो करेक्ट आएगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, आइडेंटिफाई द क्लोज इन द बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। आपको क्लोजेस ठीक है बताने हैं। अब ये जो विच और हु वाले जो सेंटेंस होते हैं उसके अंदर एडजेक्टिव क्लोज होता है, तो ये एडजेक्टिव क्लोज का ही द बुक, ओके, द बुक है वो विच वर्ड है, यहाँ पर बुक को रिलेट कर रहा है, ओके, तो यहाँ रिलेटिव क्लोज होगा या एडजेक्टिव क्लोज भी बोलते हैं इसको, तो बी इज द करेक्ट आंसर। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 88, कंसिडर द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, सर्टन ही बी दैट इज विल लेट। तो आपको इसको क्या है कि वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको प्रॉपर ऑर्डर के अंदर है वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो बी आंसर है वो करेक्ट आ रहा है, और जो आपका सेंटेंस बनेगा वो ये बनेगा, दैट ही विल बी लेट इज सर्टन, कि वो लेट आएगा ये बात बिल्कुल सर्टन है। तो बी है वो राइट आंसर आ रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 89 to 90, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन, ठीक है, क्या करना है, आई हैव रेड स्टोरीज इन हिंदी बट ओनली इन इंग्लिश। तो आई हैव रेड मैनी स्टोरीज इन हिंदी बट ए फ्यू इन इंग्लिश, तो ए है वो राइट आंसर आएगा। अब ये डिटर्मिनर्स का क्वेश्चन है, ठीक है, मैनी और ए फ्यू दोनों ही डिटर्मिनर्स हैं, एन और सम भी डिटर्मिनर्स हैं। क्या है, डिटर्मिनर्स के ऊपर भी मैंने वीडियो है वो बनाई हुई है, ईजी इंग्लिश एनसीईआरटी लर्निंग विद चंद्रपाल पर जाकर के आप देख सकते हो। दिस इज़ फर्स्ट टाइम आई हैव विजिटेड बिग सिटी, तो ये आर्टिकल के ऊपर क्वेश्चन है, दिस इज़ दी फर्स्ट टाइम, ओके, दी फर्स्ट, दी सेकंड, दी लास्ट, ऐसे बोलते हैं हम। आई हैव विजिटेड बिग सिटी, ए बिग सिटी, तो यहाँ पर बी आंसर है वो करेक्ट आएगा। 91 के अंदर, आवर मंथली एक्सपेंडिचर बाय 500 रुपी व्हेन वी डिसाइडेड टू बाय मिल्क फ्रॉम द मिल्कमैन, तो यहाँ पर ए है वो राइट आंसर आएगा, ग्रू अप, ठीक है, बढ़ गया है हमारा मंथली एक्सपेंडिचर, खर्चा बढ़ गया है 5000 रुपये जब से हमने मिल्कमैन से दूध खरीदना शुरू किया है। 92 के अंदर, राम इज़ गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री, द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द अबव सेंटेंस विल बी। प्रेजेंट परफेक्ट आपने बताना है, ओके। अब प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हम है वो विल और प्रेजेंट परफेक्ट बताना है, तो आपको हम लोग हैं वो हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि राम हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री, ए पार्ट है वो राइट होगा, ओके। ये आपका फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, और ये फ्यूचर कंटिन्यूस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 93, ओके, 93, लंबी वीडियो होती जा रही है, ओके। चूज़ द करेक्ट फ्रेजल वर्ब, करेक्ट फ्रेजल वर्ब आपको बतानी है। फ्रेजल वर्ब का जो मीनिंग होता है वो होता है वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, ओके। तो क्या है, आई कैन नॉट मेड आउट द हेड और टेल ऑफ योर स्टेटमेंट, ओके। तो यहाँ पर आई कैन नॉट, मेक आउट नहीं होगा, मेक अप होगा, मेकअप। ही मेड विद एन एक्सीडेंट, मेड नहीं होगा, ही मेट विद एन एक्सीडेंट होगा। कंट्रोल यूर इमोशन एंड मूव ऑन द लाइफ,
ओके, मूव ऑन, ओके, तो प्लीज़ सॉर्टेड आउट, ओके, प्लीज़ के बाद है वो सॉर्ट आउट होगा, सॉर्टेड आउट नहीं हो सकता, तो यहाँ पर 3 है वो करेक्ट आ रहा है आपका। कंट्रोल योर इमोशन एंड मूव ऑन इन द लाइफ, ओके, 3 इज द राइट आंसर हेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 94, अविनाश वॉज द फर्स्ट सस्पेक्ट इन दैट केस, ओके, okay, one question we have left. (94) yes, yes, fill in the blanks with the suitable preposition given below. After all, work hard has come to tell, okay, tell upon your health, okay, tell upon, टेल के साथ अपॉन प्रपोजिशन लगता है, बी है वो करेक्ट आएगा। अब 95 एंड 96 है वो सिमिलर टाइप क्वेश्चन है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव आर गिवन फॉर द इडियम्स फ्रेजेस प्रिंटेड इन बोल्ड एट द क्वेश्चन प्लेसेस। चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग, ओके, ऑफ द इडियम फ्रेज एज यूर वर्ड। द किंग, द काइंड ओल्ड वीमेन रिसीव्ड द स्ट्रेंजर विद ओपन आर्म्स, ओके, खुले हाथों से स्वागत करना होता है, with warmth, okay, B is the correct answer here. My friend ran off helter and skelter down the slope, okay, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हेल्टर एंड स्केल्टर का मीनिंग होगा हरीडली इन एंड इन कन्फ्यूजन, ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 97, in each of the following questions choose from the given word below the 2 sentences that word which has the same meaning and can be used in the same context as the part given in the italics। तो क्या है, प्रिया spends her leisure time reading novels, Kamal had a lean body and could manage to squeeze into the little space available। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आएगा वो 97 के अंदर है वो ए आएगा, ओके, लेजर टाइम फालतू समय होता है, स्पेयर, ओके, स्पेयर आएगा, तो दोनों के लिए स्पेयर है वो, लीन और स्पेयर के लिए दोनों ही मतलब वर्ड है वो, लेजर और लीन के लिए स्पेयर वर्ड है वो, दोनों के लिए लगा सकते हैं हम। 98, अविनाश वॉज द फर्स्ट सस्पेक्ट इन दैट केस, यू आर इन द प्राइम ऑफ लाइफ, ओके, डी है वो करेक्ट आएगा। अब 99 एंड 100 की तरफ चलते हैं। क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर गिवन वर्ड सेंटेंस। ए पर्सन होल्डिंग ए स्कॉलरशिप एट ए यूनिवर्सिटी, तो ये बसर होगा, ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के क्वेश्चन हैं। ए पर्सन विदाउट मैनर और पॉलिश, अब ये 100th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन सी कोड के अंदर जो है, इसके अंदर भी आपको क्या है कि ग्रेस मार्क्स है वो मिलने की मतलब संभावना बनती है, ठीक है, क्योंकि जो रस्टिक होगा वो भी मैनर्स विदाउट मैनर्स होगा, ठीक है, विदाउट मैनर्स होगा, ए पर्सन विदाउट मैनर्स और विदाउट पॉलिश, ओके, और जो बोरिश होगा इसका भी जो मीनिंग है वो सेम बनता है। बोथ आर करेक्ट आंसर मेरे अकॉर्डिंग, ओके, दोनों पर ही आपको मार्क्स है वो मिलने चाहिए, एसएससी को ग्रेस मार्क्स है वो देने चाहिए। तो दिस इज़ योर English part, okay, I do hope, okay, you all will score good marks, okay, thank you so much. Still you have any query or any doubt, you can write down, okay, in the comment section. If you like my video, share it with your friends, okay. If you have not watched earlier paper of TGT English which was conducted in the year 2015, उसको भी आप देख सकते हो, दोनों को कंपेयर कर सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल रिजल्ट। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।